Hello everyone, I'm Yasmin Khanam, a clinical dietitian from DS Research Center, Hyderabad. I welcome you all for today's webinar on diet challenges faced during cancer treatment. To all the viewers who are here for the first time, let me introduce you to DS Research Center. DS Research Center is an organization that was established back in 1965 by Dr. Umashankar Tiwari and Professor Shivshankar Trivedi with a primary goal to transform the scientific breakthroughs into innovative cancer treatment. DS Research Center has its branches in various parts of the country. It's rooted in Varanasi, Kolkata, Guwahati, Bangalore, Mumbai, and Hyderabad. DS Research Center team comprising the scientists, doctors, dietitians, and pharma group work together to turn the discoveries into personalized therapies that will benefit cancer patients. DS Research Center's nutrient energy based ancient Ayurvedic treatment has made it possible to stretch the lifespan as well as the general health of numerous terminally ill cancer patients. And for today's webinar, we have with us two eminent speakers. Let me introduce you to our first speaker of the day, dietitian Barnali Nandi Purkayeshka. She is a chief dietitian cum clinic head in DS Research Center, Guwahati. She has done her post graduation in food and nutrition from Assam Agricultural University and now pursuing her PhD. She has more than 20 years of experience in the field of medicine and health. She has worked as tertiary manager, product specialist, slimming head, and dietitian in various organizations. She has expertise in the field of providing diet to cancer patient and service to patient care. She is a life member of Northeast Nutrition and Dietetic Association NINDA. She is also a life member of Nutrition Society of India. She is associated with Utshah NGO for Underprivileged, Red Cross Society of India, Rotary Club, Kaziranga Women's Society, and Women Development Center under Don Bosco. It's been more than 10 years now that she is associated with DS Research Center. I welcome you on the board, dietitian Barnali Nandipurkayeshta. Thank you, Yasmin, for the beautiful introduction. It's our pleasure to have you today. Our next speaker for the day is Ms. Nabaruna Ganguly. She's a clinical dietitian at DS Research Center, Kolkata. She has done BSc in Nutrition and Dietetics from Calcutta University and MSc in Food Processing and Nutrition Science from BSU. She has done her institutional project on infusion of DHA in food processing at high temperatures. She has completed her training from a multi-speciality hospital and also worked at community level. Her areas of expertise include cancer, thyroid, diabetes, cholesterol management, and several gynecological problems, pregnancy, lactation, and weight management. She participates in various cancer awareness activities and seminars. It's been more than 6 years now that she is associated with DS Research Center. Welcome on the board, dietitian Nabaruna Ganguly. थैंक यू यास्मीन. थैंक यू. सो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे. आज हम लोग देखेंगे कि कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स को और उनके केयर टेकर्स को ऐसे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डाइट के रिलेटेड, और जो भी डाइट के रिलेटेड सुझाव उन्हें अपनाने चाहिए उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होता है उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पेशेंट का शरीर उस ट्रीटमेंट को सपोर्ट करे. तो किसी भी पेशेंट के शरीर उसके ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट का जो खान पान है वो ठीक तरह से रखा जाए. उससे पेशेंट की बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो मेंटेन रहती है, बॉडी वेट मेंटेन रहता है, ट्रीटमेंट के जो भी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो सकते हैं, ट्रीटमेंट स्मूथली चल सकता है, ट्रीटमेंट के जो भी आउटकम्स होते हैं बेटर हो सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलने की संभावना होती है. लेकिन हम देखते हैं कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि भूख का कम लगना या बिल्कुल ही भूख ना लगना, और टेस्ट चला जाना, उल्टी जैसे फील होना, जो कि नॉजिया हो गया, वॉमिटिंग है, माउथ सोर्स है. तो इन सारे दिक्कतों के कारण पेशेंट कभी खुद से ही अपना खान पान कम कर देते हैं. तो ऐसे में होता ये है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो वीक पड़ने लगती है, पेशेंट का वेट लॉस होता है, एंड ट्रीटमेंट
से जो भी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के वापस से वीकनेस होने लगती है। तो एक विशियस साइकिल सी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की तबीयत जो है वो और भी बिगड़ने लगती है। तो इसीलिए हम पेशेंट्स को हमेशा यही कहते हैं कि उनका जो खान पान है वो ठीक से मेंटेन रहे और बैलेंस्ड रहे। चलिए खान-पान से संबंधित एक सवाल करते हैं डायटीशियन बर्नाली नंदी पुरकयस्ता से। हम लोग अक्सर जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनमें यही देखते हैं कि वेट लॉस जो है बहुत कॉमन होता है। ऑलमोस्ट एवरी कैंसर पेशेंट में हम लोग देखते हैं इसको। तो ऐसे में हम लोग उसको डाइट से किस तरह से मैनेज करते हैं, एंड व्हाट वुड बी द डाइटरी सजेशंस दैट यू गिव टू एनी कैंसर पेशेंट दैट कम्स टू यू? ओवर टू यू बर्नाली। Thank you, Yasmin. Thanks for the important question. Yeah, weight loss. It is very it's prevalent in cancer patient, and weight loss is something like this happens to every cancer patient. So when there is weight loss actually, so the patient first go for the screening. He should go for the screening, get his test done, because weight loss is associated with cancer. But always weight loss is not associated with cancer. It may be due to other ailments as well. Further, if a patient undergoes weight loss when he is not trying to, then it may be an early sign of cancer. Then the patient or the person should go for screening, because as you say that, early detection is best prevention. So he or she should go for screening. He or she should go to the doctor to see why there is progressive weight loss happening. Weight loss also happen for other reasons in cancer patient, maybe due to appetite changes, pain, then difficulty in swallowing, then swollen abdomen, enlarged liver, a blocked bowel, and a high level of calcium in the blood, and not absorbing the nutrients from the food we eat, that is malabsorption. So these are the factors that contribute to weight loss in a cancer patient. Right. Moreover, there is another condition which is cancer cachexia. Cancer cachexia means despite of eating normally, the nutrients are not absorbed properly. Okay, then the patient undergoes weight loss. It's a progressive weight loss. Severe weight loss is seen in cancer cachexia. Okay, that is also one condition. Other condition is hypermetabolism. Hypermetabolism means the calorie burns faster more than the normal. So that also contributes to weight loss. And another is the wasting syndrome, or the muscle wasting, or protein catabolism. So these are the things which contributes to weight loss in cancer patients. So when there is severe weight loss or like progressive weight loss, then the dietitian should design a diet which is customized or tailor-made or very, very specific to that particular patient. We have to first see the BMI of the patient. Then we have to monitor the severity and degree of malnutrition. Then we need to add high calorie and high protein to the diets together with fats and oils. Okay, in general, the diet will be comprised of cereal, pulses, legumes, milk and milk products, then fish, then other vegetables and protective food like fruits. But apart from that, we'll be adding high protein and high calorie to the patient's diet. So high protein in the sense, if you talk about vegetable source, then we can go for soybeans, soya products, then lentils and legumes, then sprouts, dried beans and peas. These are the vegetarian sources of protein. Then if you speak of non-vegetarian sources, then lean meat like chicken, fish, we can add more eggs to the diet, like 2 whole eggs per day and 3 to 4 egg whites to the patient's diet. But if the patient is suffering from hyperthyroidism, then he has to avoid soya products. So these are the high proteins we can add. And if you talk of high calorie, then we should use nut, then we should use oils. We can use nuts from butter, then butternuts, then peanut butter, healthy oil like olive oil. So these are some of the calories we can add to the patient's diet to make it high calorie and high protein. Okay, otherwise this may lead to, if there is prolonged weight loss, this may lead to malnutrition. So we have to manage it very nicely, and management is very important in case of weight loss. Patient has to remain active. He should perform yoga or normal exercises, whatever he can, his body supports actually. And he should remain well hydrated. That is also an important point. So everything, when the diet is managed properly,
then the patient can remain active or he can remain energetic throughout the treatment. Because weight loss can happen the cancer patient any moment, like during the treatment, after treatment, or if the patient is suffering from cancer. So weight loss management is very important in case of cancer patients, so that he can get recovered soon, or like recovery is good. Thank you. ओके, टू ऐड ऑन टू दिस, हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे पेशेंट का वेट लॉस होता है, उनका वैसे ही एपेटाइट भी लो हुआ हुआ रहता है। हाँ तो जी। ऐसे समय में आप कुछ इंस्टेंट ड्रिंक्स या फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सजेस्ट करते हो? वैसे लेना फॉर अ लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है पेशेंट्स को या नहीं? हाँ जी, हम लोग तो सपोर्ट के लिए जैसे ये मिल्क शेक्स, मिल्क प्रोडक्ट्स भी कभी कभी देते हैं, जहाँ पेशेंट ले सकते हैं, ठीक है। और लाइक सप्लीमेंट भी हम लोग देते हैं, अगर देख रहे हैं कि इंटेक बहुत ही कम हो रहा है, पेशेंट अपना मुंह से नहीं ले पा रहा है, तो फिर लाइक वी कैन डिजाइन दैट डाइट। लेकिन ये भी लाइक इम्पोर्टेंट है, पेशेंट ले पा रहा है या नहीं। अगर पेशेंट नहीं ले पा रहा है तो we have to give supplements. In that case, like we give supplements so that उनको formula feeding मिले, proper nutrition मिले। एंड इवन जब पेशेंट्स जब एपेटाइट कम होता है उन लोग का, और सप्लीमेंट्स भी यूज करते हैं, मिल्क भी यूज करते हैं, तो आई थिंक ऐसे समय में अगर वो स्मूथीज ज्यादा प्रिफर करें, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज स्मूथीज आर अ ग्रेट वे ऑफ पैकिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एनर्जीज, विटामिन्स, सारी चीजें एक सिंपल रेसिपी इसमें, आई मीन फूड में कंपोज कर सकते हैं हम लोग। तो स्मूथीज कैन बी अ बेनिफिशियल वे फॉर इम्प्रूविंग वेट। एकदम। यस, ऑफ कोर्स स्मूदीज भी हम लोग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक भी, फिर प्रोटीन ड्रिंक, ये सारा हम लोग दे सकते हैं। अगर पेशेंट का इंटेक एकदम ही खराब हो, एकदम ही नहीं ले पा रहा है, तो फिर वी हैव टू इंट्रोड्यूस। लेकिन पहले तो हम लोग देखेंगे डाइट से कैसे मैनेज हो जाए, अगर नहीं हो रहा है तो सप्लीमेंट्स जरूरी हो जाता है। Absolutely. Thank you so much for that detailed answer. Next question I have for you, dietitian Nabaruna. Like we see, poor appetite is also a challenge that patient faces, sometimes due to the disease, cancer itself, sometimes because of the treatment, and it gets remained even after the treatment. So, how, in your opinion, how to overcome the problem of appetite changes during and after the treatment? कैंसर पेशेंट के लिए जो एपेटाइट का चेंजेस प्रॉब्लम है, तो वो एक सिम्टम भी हो सकते हैं कि भूख नहीं लगना, वो एक वन ऑफ द सिम्टम होता है कैंसर पेशेंट का, कैंसर का। तो और इसके लिए और ट्रीटमेंट के दौरान भी जो होता है कि हार्मोन ट्रिगर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भूख नहीं लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज कर जाते हैं, जैसे सोर थ्रोट हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से भी एपेटाइट लॉस दिखा जाता है। तो पहले हम लोगों को करना होता है कि प्रॉपरली डायग्नोस करना होता है कि क्यों लॉस ऑफ एपेटाइट है, कि अगर उनको कोई इंडाइजेशन की वजह से नहीं लेना चाहते हैं खाना, जैसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, पेट साफ नहीं हो रहा है, ब्लॉटिंग है, तो उस वजह से एक अलग टाइप का डाइट जाता है जो इजी टू डाइजेस्टेबल होता है। स्मॉल मील डिलीवर किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा खाना खाए और थोड़ा थोड़ा अगर पचा पाए तो टाइम टू टाइम, तो वो देखा जाता है। और अगर देखा जाता है कि सोर थ्रोट या फिर ड्राई माउथ की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं, वो पेन की वजह से खाना नहीं खा रहे, तो उस वजह से उसको दिया जाता है जैसे लिक्विड डाइल, अपने अभी भी बोला कि स्मूदी के बारे में, सूप्स, सप्लीमेंट्स वैसे वाला दिया जाता है कि कॉम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा लिक्विड पोर्शन में उनको कॉम्पैक्ट न्यूट्रिशन जो है मिल पाए। अगर देखा जाता है कि गैस, ब्लॉटिंग या फिर बाउल का प्रॉब्लम है, तो उस वजह से उस हिसाब से ही डाइट को डिजाइन किया जाता है कि वो वाला प्रॉब्लम पहले एलिमिनेट हो। और कुछ ऐसा वाला रेमेडी भी दिया जाता है, जैसे अगर किसी को स्प्लीनोमेगाली होता है तो अब तो भी देखा जाता है कि एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, और तब थोड़ा कुछ ऐसा कूलिंग फूड दिया जाता है, जैसे लौकी हो जाते हैं, अगर दाल के साथ लौकी मिला के दिया जाता है, या फिर सूप में थोड़ा सा पपाया ऐड किया जाता है, या फिर सौफ का फेनल सीड वाटर जो होता है, फेनल सीड वाटर जो होता है वो वाला दिया जाता है। नारियल पानी के साथ थोड़ा सा पुदीना पत्ता, मिंट लीव्स जो होता है वो वाला थोड़ा सा अगर कंबाइन करके पिलाया जाता है। या फिर अगर डाइजेशन का भी प्रॉब्लम होता है, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, तो लेमन ग्रास जिंजर टी बहुत एक अच्छा इफेक्ट होता है। ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग में भी बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं लेमन ग्रास जिंजर वाटर। तो ऐसे वाला पहले डायग्नोस किया जाता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट किस वजह से है, उसको डायग्नोस करने के बाद उसको दिया जाता है
कि कौन सा वाला डाइट उसके लिए प्लान किया जाता है, उसके लिए बेहतर होगा। तो उस हिसाब से उसका वेट मैनेजमेंट भी देखा जाता है, डिजीज कंडीशन भी देखा जाता है। जैसे अगर देखा जाता है कि थोड़ा सा फ्लेवरफुल खाना देने से उसको ठीक लगेगा, और मोनोटोनस खाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम देना है। जैसे अगर ब्रेकफास्ट में देते हैं और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो अगर टाइम टू टाइम अगर प्रॉपर टाइमिंग मेंटेन किया जा सकता है इसके लिए, और स्मॉल मील डिलीवर किया जा सकता है, तो ये वाला प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। एकदम रातों रात नहीं ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे डेफिनेटली ये ठीक हो सकता है। और फ्लूइड बैलेंस डेफिनेटली एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस पार्ट में। अगर प्रॉपर फ्लूइड भी अगर नहीं दिया जाता है तो पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहते हैं, तो इस वजह से भी लो एपेटाइट हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं, फेस कर सकते हैं। बाउल क्लियर नहीं हो सकते, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, इस वजह से भी मतलब लो एपेटाइट हो सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो उनका कंडीशन है उसको प्रॉपर्ली डायग्नोस करना है, फिर उसको डाइट प्लान करना होता है। ओके, आई ऑल्सो थिंक कि अगर कोई पेशेंट का एपेटाइट कम है तो वो एक छोटा सा मील से पहले एक छोटा सा वॉक ले ले, तब भी वो एपेटाइट इंप्रूव करने में हेल्प करता एकदम है। एकदम। Okay. Thank you for the answer, Nabaruna. I'll get back to you again. I have a question now regarding nausea and vomiting. It's over to you, dietitian Banali. Nausea and vomiting are the two common issues that is faced by cancer patients undergoing the treatment, may it be chemotherapy, radiotherapy, surgery, or any other treatment. So, how do you manage these problems when it comes to your own patients? Thank you, Yasmin, for the important question too. This is also very important because nausea and vomiting is very common with cancer patient, like who is suffering from cancer, who has done his treatment or who is under treatment or during his treatment. Nausea and vomiting कभी भी हो सकता है patient को, cancer patient को, तो ये control करना, ये prevent करना बहुत जरूरी हो जाता है. So like there are 3 types of nausea and vomiting. One is एक्यूट में साथ ही साथ हो जाए ट्रीटमेंट के समय, वन इज डिलेड जैसे ट्रीटमेंट की बात हो, और एक है एंटीसिपेटरी नॉजिया एंड वॉमिटिंग, जैसे पेशेंट को फील हो कि मुझे नॉजिया वॉमिटिंग हो सकता है। तो ये 3 स्टेजेस में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया एक्यूट ट्रीटमेंट के समय, एक हो गया तुम्हारा लाइक ट्रीटमेंट के बाद डिलेड, और एक हो गया एंटीसिपेटरी। ठीक है, तो नोजिया एंड वॉमिटिंग कब हो सकता है? जैसे पेशेंट अगर सर्जरी हो पेशेंट का, या केमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, टारगेटेड थेरेपी हो, कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट में नोजिया एंड वॉमिटिंग हो ही सकता है पेशेंट को। लेकिन इसको प्रिवेंट और कंट्रोल करना थ्रो डाइट या थ्रो मेडिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर बहुत सीवियर है तो मेडिकेशंस बहुत चाहिए। अगर हम लोग डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज दैट लाइक वी हैव टू डिवाइड 3 लार्ज मील्स इनटू फ्रीक्वेंट मील्स, लेकिन फ्रीक्वेंट इंटरवल में खाना है, छोटा छोटा मील लेना है। ठीक है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाना है। हम लोग का स्टमक को एम्प्टी नहीं रखना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है, बिकॉज इफ आवर स्टमक इज एम्प्टी इट विल मेक आवर नोजिया एंड वॉमिटिंग मोर वर्स। वी कैन इंट्रोड्यूस ये क्लियर लिक्विड, जैसे बार्ली वाटर भी हम लोग ले सकते हैं, क्लियर सूप्स ले सकते हैं, फिर ग्रीन टी ले सकते हैं, फिर ब्लैक टी ले सकते हैं। ये सारा है कि सूदिंग टू आवर स्टमक। और हम लोग देखेंगे कि जो फूड्स ले रहे हैं ना पेशेंट, वो ब्लैंड हो। ब्लैंड डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग। ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, फिर ऑयली नहीं होना चाहिए, ग्रीजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्राइड फ्रूट्स नहीं होना चाहिए, और ज्यादातर वो तो सॉफ्ट डाइट या लिक्विड डाइट पे रहने से ज्यादा सही है पेशेंट के लिए। और हम लोग ये भी देखेंगे कि पेशेंट को स्मूदीज दे, थोड़ा मिल्क शेक्स दे, और क्लियर लिक्विड जैसे हम लोग एप्पल जूस भी दे सकते हैं। तो ये सारा सूदिंग टू द स्टमक होगा, और उल्टी का जो टेंडेंसी होता है ना वो कम हो जाएगा। और थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा करके पानी सिप करना है, स्लोली, ज्यादा नहीं पीना है एक साथ, स्लोली पानी सिप करना है, ये भी बहुत जरूरी है। और पेशेंट को जैसे जब अच्छा लगे, दिन में जो समय अच्छा लगे, लाइक ही इज फीलिंग बेटर, तभी खाना खाना चाहिए। ठीक है, ये भी देखना है, और मील्स नहीं स्किप करना है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और अगर टेस्ट ऑल्टर हो गया, जैसे कभी कभी टेस्ट एकदम ही ऑल्टर हो जाता है ना, तो कि हम लोग तब क्या कर सकते हैं, मुंह के अंदर थोड़ा अदरक रख सकते हैं, फिर लौंग जो है वो भी रख सकते हैं, और हम लोग मुंह के अंदर में थोड़ा ये रेजिन्स जो है ना, किशमिश जो है ना, ये भी रख सकते हैं, आंवला भी रख सकते हैं मुंह के अंदर। तो दैट विल एनहांस आवर टेस्ट, एक्चुअली टेस्ट बड को एनहांस करेगा, तो फिर नॉजिया एंड वॉमिटिंग थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है।
अगर फिर भी बहुत सीवियर हो रहा है तो जरूरी है कि मेडिकेशंस पे जाए। और एक चीज मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, जैसे ठंडा पानी में, ठंडा नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी में पुदीना पत्ता दे के भी ले सकते हैं पेशेंट, और नहीं तो नारियल पानी में, जैसे नवरुना बोले हैं ना, तो ये मिंट वाटर जैसे नारियल पानी में मिंट का थोड़ा लीव्स देके वो भी ले सकते, वो भी नोजिया वॉमिटिंग में बहुत काम आता है। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है ना, उसको कंट्रोल या प्रिवेंट करना बहुत ही जरूरी होता है, और अदरवाइज इट में लीड टू मेल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन इन कैंसर पेशेंट, जो एकदम लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। सो दिस आर सम ऑफ द होम रेमेडीज जो कैंसर पेशेंट कर सकते हैं अगर ही इज एक्सपीरियंसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग। ओके, एंड आई ऑल्सो फील के जो कोल्ड फूड्स होते हैं वो बेटर टॉलरेट होते हैं। अगर जब पेशेंट्स को नॉजिया वॉमिटिंग होता है तो वो बेटर टॉलरेट होते हैं, बिकॉज वो उतना ओडर प्रोड्यूस नहीं करता, स्मेल नहीं आती है। तब जब स्मेल नहीं आती है तो पेशेंट फिर भी उस फूड को एक्सेप्ट कर सकता है कंपेयर टू हॉट फूड्स। एंड जो भी पेशेंट्स यूजुअली जो हमारे पास कंप्लेन करते हैं नॉजिया वॉमिटिंग की, वो यूजुअली देखा जाता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के टाइम। तो वो लोग जब भी खाना खाते हैं उनको उल्टी जैसा फील होता है, जिस वजह से वो बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे में पेशेंट्स अगर खाना जब मील्स ले लेते हैं, उसके बाद एक सिटिंग पोस्चर में रहना अप टू 30 मिनट्स, वो बहुत आइडियल रहेगा। वो लोग एकदम से फ्लैट सोना नहीं चाहिए। ऐसे सोने से जो फूड जो स्टमक तक रीच होना चाहिए वो नहीं होकर रिफ्लेक्स होना शुरू होता है, एंड उस वजह से नॉजिया फीलिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इट्स ऑलवेज आइडियल कि आफ्टर मील्स या तो आप एक 10 मिनट्स का वॉक ले लें या फिर सिटिंग पोस्चर में 30 मिनट्स तक स्टे करें। हाँ, ये सब भी जरूरी है, क्योंकि पेशेंट का जो वेलबींग है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन ही फील वेल तो उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा कुछ ले भी सकता है। सो लाइक थोड़ा तो एक रेस्ट जरूरी होता है, और अगर लाइट वॉक, ज्यादा एग्जॉशन नहीं होना है, लाइट वॉक भी कर सकते हैं पेशेंट। तो ये सारा लाइक होम रेमेडीज भी हम लोग अपना सकते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट को बोल भी सकते हैं कि ऐसा आप कीजिए करके। एब्सोल्युटली। और अगर चाहते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं खाने में जो पेशेंट को अच्छा लगते हो। जैसे कभी कभी होता है कि थोड़ा सा स्प्रिंकल ऑफ लेमन जूस, स्प्रिंकल ऑफ, या फिर कोई भी इलायची पाउडर जो होता है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देने से, कोई फ्लेवर ऐड करने से थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा उनका टेस्ट इनहेंस होता है, अच्छा लगता है, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। Absolutely. And the last question I have for today is regarding IBS, irritable bowel syndrome. Let me tell you all, irritable bowel syndrome is a medical condition that affects the large intestine. It can cause abdomen pain, cramping, bloating, and sometimes it can change the bowel habits, either diarrhea or constipation, or kabhi-kabhi alternating combination of both diarrhea and constipation. So the question is over to you, dietitian Nabaruna. What are the dietary challenges faced by patients due to IBS during and after cancer treatment? And what are the dietary solutions that you provide for the same? थैंक यू यास्मीन फॉर द क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि जो IBS है उसमें पेशेंट या फिर बोथ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया फेस करते हैं, या फिर ऑल्टरनेटिवली कोई भी इधर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया फेस करते हैं। तो उस हिसाब से पेशेंट को अगर क्या प्रॉब्लम हो रहा है उस हिसाब से देख के उनको डाइट प्लान किया जाता है उनका। अगर उनको डायरिया होता है तो डेफिनेटली फ्लूइड बैलेंस में ध्यान दिया जाता है, उनका सॉल्ट बैलेंस, जो मिनरल होता है, जो डायरिया हो जाने से फ्लूइड लॉस होता है, मिनरल लॉस होता है, उसमें ध्यान दिया जाता है। तो इसमें देखा जाता है पेशेंट को अगर एकदम क्लियर फ्लूइड सूप लाइक वेज, नॉन वेज सूप लाइक वेज ब्रॉथ जो होता है, क्लियर सूप होता है, दाल क्लियर सूप होता है, चिकन क्लियर सूप होता है, ये सब दिया जाता है तो अच्छा होता है। अगर उसको नॉर्मली वो राइस पचा नहीं पाते, खा नहीं पाते, तो स्मैश पोटैटो से भी उसका कार्बोहाइड्रेट जो है सप्लीमेंट किया जा सकता है, स्मैश पोटैटो से। और जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, डेफिनेटली कभी कभी इसमें रॉ बनाना भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इस डाइट पे, अगर डायरिया हो तो। और अगर पेशेंट को हाँ ये भी ध्यान देना है कि वो डाइट इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि अगर पेशेंट को एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, तो वो वाला और भी प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देगा। तो इसलिए देखा जाता है कि वो इजीली डाइजेस्टेबल भी हो, तो डाइजेस्ट करने के लिए वो ब्लेंड भी रहना जरूरी होता है। ज्यादा स्पाइसेस अगर दिया जाता है खाने में, कोई भी कभी कभी देखा गया है कि मिर्च से वाला प्रॉब्लम होता है कि अगर चिलीज रहता है डाइट में तो डायरिया का जो सिम्टम है वो वाला ज्यादा बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली ये इंश्योर करना है कि उस डाइट में कोई भी पेपर, चिली वो वाला नहीं रहे।
और रहे बात अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, तो उस हिसाब से भी डाइट प्लान किया जाता है कि उसमें फाइबर इनरिच्ड हो। हर एक मील में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा बेहतर होता है, कि वो वाला एब्जॉर्ब करने में भी ज्यादा बेहतर होता है और बाउल प्रोड्यूस करने में भी ज्यादा अच्छा होता है वो वाला। तो सॉल्युबल फाइबर अगर दिया जाता है और थोड़ा बहुत इंसॉल्युबल फाइबर, मतलब 20% अगर इंसॉल्युबल फाइबर एंड मैक्स टू मैक्स सॉल्युबल फाइबर दिया जाता है, तो वो वाला बेहतर होता है। और डेफिनेटली यहाँ पर भी फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों ही टाइप के पेशेंट में ही नारियल पानी एक नेचुरल जो ओआरएस सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं, तो 1-2 नारियल पानी जो है डेफिनेटली देना चाहिए। अगर पेशेंट को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई भी फ्लूइड लेने में, जैसे होता है कि पोमिग्रेनेट जूस, वो डायरिया के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, तो आपने जैसे प्रोटीन स्मूदी के बारे में बोला, तो वो वाला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर बनाना स्मूदी पेशेंट को दिया जाता है तो वो, या फिर ओट्स स्मूदी पेशेंट को दिया जाता है, तो वो वाला बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और मील के पहले या फिर अगर सुबह उठ के वो ल्यूका में पानी पीते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे भी थोड़ा सा हेल्प होता है। तो ये वाला देखा जाता है, उस हिसाब से उसको मतलब प्लान किया जा सकता है। अगर पेशेंट को दोनों ही प्रॉब्लम है, ले लो कि आज कॉन्स्टिपेशन है तो कल डायरिया डायरिया है, तो उस हिसाब से ही पेशेंट को बोला जाता है कि जैसे पेशेंट का सिम्टम होता है उस हिसाब से उसको ट्रीट करना है। जैसे पेशेंट को अभी कॉन्स्टिपेशन है और मैं डायरिया के सिम्टम के हिसाब से मैं उनको प्रोमिग्रेनेट जूस पिला रही हूँ, तो उससे कंडीशन तो और भी खराब होगा। तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर भी करना है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस हिसाब से उनको उस टाइम का हिसाब से डाइट देना होगा, खाना देना होगा। ओके। ये भी एक फैक्टर होता है कि स्ट्रेस है एंड इमोशनल डेफिनेटली स्ट्रेस है। बैलेंस जो है, उस वजह से भी आईबीएस हो जाता है पेशेंट्स को। तो ऐसे समय पे स्ट्रेस को मतलब कैसे, मतलब आप लोग बैलेंस करते हो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के थ्रू? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो प्रोफेशनली एक्चुअली इफेक्टिवली कर सकते हैं। फिर भी हम लोग डेफिनेटली हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेशेंट को बताते हैं कि जैसे हम लोग एक्सपीरियंस किए और भी पेशेंट के लिए, कि पेशेंट ठीक हुए हैं धीरे धीरे, ये वाला जो अभी वो फेस कर रहे हैं जो कंडीशन उनका, तो धीरे धीरे ठीक हुए हैं, तो वे वाला एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हैं, तो थोड़ा सा शायद उनका मनोबल बढ़ जाता है, तो उस स्ट्रेस भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। और डेफिनेटली जो होता है फैमिली मेंबर का सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, वो भी बहुत ही मायने रखते हैं। तो दोनों एक्चुअल जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है वो तो डेफिनेटली मैं फिर से बताऊंगी कि प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। फिर भी जो भी हमारा एक्सपीरियंस है थ्रू डीएस रिसर्च सेंटर, कैंसर पेशेंट को, बहुत सारा कैंसर पेशेंट को देखते देखते जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करे हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस अगर हम लोग उनके साथ शेयर करते हैं तो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आते हैं। ओके। कभी कभी ऐसे भी माना जाता है कि आईबीएस एक पॉजिटिव फैक्टर बन जाता है कोलोन के कैंसर्स के लिए, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, ये वाला ओपिनियन मैं बोलूंगी कि पूरा का पूरा सही नहीं है। कोलोन कैंसर के लिए एक सिम्टम होता है आईबीएस, और कभी कभी बोला जाता है कि आईबीएस की वजह से कोलोन कैंसर होता है, लेकिन नहीं होता है। आईबीएस कोई इन्फ्लेमेशन नहीं करते हैं कोलोन में। तो आईबीएस की वजह से मतलब आईबीएस बहुत सारे वजह से हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, अगर कोई एक्यूट डिप्रेशन में भी हो तो वो भी इंडाइजेशन की वजह से आईबीएस हो सकता है। कैंसर के थ्रू जब ट्रीटमेंट होता है तो भी आईबीएस हो सकते हैं, आईबीएस फेस कर सकते हैं पेशेंट, प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलोन मतलब आईबीएस अगर हो तो कोलोन कैंसर ही होगा, या फिर कोलोन कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो आई थिंक अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत क्लियर हो चुका होगा कि ऐसे डाइट से रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको कैसे मैनेज करना है। So, to all the viewers who are here, if you have any queries or question further on this topic, you can write it down in the comment section below and we'll surely respond to them. And thank you, dietitian Barnali Nandipurka Yashta and dietitian Abaruna Gangli. It was wonderful to listen from a person who is actually practicing it. The session was very informative and you have given valuable inputs. And I also think all the attendees have got a lot to learn from this webinar and to take home. So I also thank all the attendees for being here and patiently listening to us. With this, I conclude the session. Thank you once again, everyone, for being the part of this session. थैंक यू। Thank you.